notes, and if you want to make notes from this, you can make the notes, and even it will help you to uh, revise that chapter during the time of examination whenever required. Okay, so the topic is histology of stomach. Here, we will be studying about TS. Okay, Mehroj, please delete this part from your mobile. Please delete this part. Yes. So we will be studying TS. Let me explain you the meaning of TS, LS. Okay, TS means transverse section. Transverse section. And LS means longitudinal section. ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दैट यू हैव an apple. Okay, there is an apple. So apple, you can cut this apple by two different methods. ठीक है, मम्मी इसको ऊपर से straight cut नीचे देते like this. So it will be divided into two parts like this. You can find the seeds present around the centric manner like this. 7 to 8 seeds are there. Okay, तो आपको ऐसा कुछ अंदर से देखने को मिलेगा. So when this type of cut is given, it is called as longitudinal cut. What it is called as? Longitudinal cut. But if I am cutting it from middle, so that the half part, upper part looks like this, and the lowermost part you can find a circular section down there like this, and the seeds are arranged in concentric manner like this. Understood? So if the cut is given like this, then I call it as it's a transverse section cut. Transversely it is cut into the part. Okay, so since from your 11th standard till the end of your study, till and when you are studying in any of the institute, in biology these two terms will be in every chapter, that is TS and LS, transverse sections and lateral sections, or you can call it as longitudinal section. Okay, so both this section you have to remember. I hope that this topic is clear, transverse and LS. So what we are going to study? We are going to study the transverse section of stomach. Okay, transverse section of stomach. So when we cut the stomach, cutting the stomach means when we see the internal structure of stomach, then we can find different types of layers. Okay, for example, the first layer in the stomach is serosa, SEROSA, serosa. The second layer is muscularis. Okay, there are different layers in muscularis. Then we have submucosa. देखो सब नवी नवी चीज है आप लोगों को पढ़ने के लिए. ओके, बट थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे इजी हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, इजी है. सो वी हैव सब म्यूकोसा. देन आफ्टर सब म्यूकोसा, नेक्स्ट इज म्यूकोसा. ओके, सब म्यूकोसा and mucosa. So these are the four different layers. Come on, repeat after me. Number one is serosa. Second is muscularis. Come on, read after me so that it should be a familiar and it should be easily pronounced whenever you want. Okay. Then the third one is submucosa and the fourth one is mucosa. Correct. Now I'll show you the diagram of your stomach. Like this is the stomach. It looks little. Okay, so this is your stomach. The topmost part is the esophagus. Okay, esophagus,
and this part is called as the duodenum. Okay, duodenum, where the liver and different liver and pancreas are connected with the help of hepatopancreatic duct. Okay, now internally if you see, then this layer, there you can find a inner layer also, as I have drawn here the inner layer. Okay, you can find the inner layer present over here, correct? I'm just highlighting it with the different colors so that it can be easily identified that what I'm talking about. So this layer I'm talking about, as you can see the highlighted part on the screen. Okay, so if I want a small part, as like I have drawn, wait, I'll take not this one from here. तो मैंने एक छोटे से पार्ट को वहां से सब्ट्रैक्ट किया. ओके, एज यू कैन सी दैट दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट. छोटा सा पार्ट मैंने वहां से निकाल के ले लिया है बाहर. जस्ट आई एम पॉइंटिंग इट लाइक दिस. ओके, अब मैं इस पार्ट को मैं जूम करके देखता हूँ. आई एम जूमिंग इट. तो जूम करने के बाद में उसके अंदर के आपको हर एक सेल्स, यू कैन सी एवरी सेल, यू कैन सी एवरी टिश्यू, you can see the design, you can see the pattern, how all these layers are beautifully arranged, everything you can see there. So I'm just drawing that part. The first layer, that is the lower layer that you can see, is the serosa. Okay, as you can see here, the layer, yes, this layer is called serosa, correct? So I've drawn serosa here. Let me draw it like this. So this is my serosa. Okay, and after that, after serosa we have another gland, another layer on the top, that's called muscularis. So for muscularis I'm using yellow color. It starts from the bottom and up till here it is muscularis. Muscularis के अंदर different different layers मिलेंगे आपको. Like here we have an oblique layer. Okay, this is an oblique layer. Below oblique you have a circular layer, so I'm drawing a circular layer here. Okay, and below that you have a different longitudinal layer. तो आपके लिए थोड़ा इजी करने के लिए मैं उसको डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देता हूँ. Like I said, the first one, this one, this is called as oblique. So this is my oblique layer. Okay, this is my oblique layer. Let me write that oblique part there. Oblique muscles. Okay, below to the oblique muscles I have a different kind called as circular. With the help of green color I'm representing. Green is not visible there, so I'm using red color. So you can find a circular shape cells over there. Okay, so this layer is the circular layer. ये सब कहाँ पे प्रेजेंट है? तो आपके स्टमक के लेयर्स में प्रेजेंट है. ठीक है, so I'm writing here that this is called as circular layer. And below this circular layer, student, you have a different tissue called as longitudinal
layers. So I'm just drawing it like this. एक्चुअली जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप उसको और भी कुछ डिजाइन दे सकते हो, खाली आपको पता होना चाहिए कौन सा लेयर किधर है, ठीक है। सो कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। So I'm writing here that this layer is called as longitudinal layer, ओके। और जो नीचे का लेयर था ना, ये वाला, दिस वन, उसको मैं कलर कर देता हूँ। दिस वन कहाँ से ओपन है? जस्ट अ मिनट। तो ये जो नीचे वाला लेयर है, दिस लेयर इज सेरोसा। देखो यहाँ पे मैंने सेरोसा लिखा है ना, समोसा नहीं है, सेरोसा है, ठीक है। सो दिस लेयर इज सेरोसा, आई एम राइटिंग हियर सेरोसा, okay। And all these three layers together, these three layers together, this is called as muscularis, okay। this one is called as muscularis। तो आपका फर्स्ट लेयर हो गया सेरोसा, सेकेंड लेयर हो गया मस्कुलरिस, इसके ऊपर होता है सब म्यूकोसा। तो मैं यहाँ पे एक लाइन और ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दिस। एंड लेट्स से कि ये जो लेयर मैंने ड्रॉ किया है, दिस लेयर इज विच वन? सब म्यूकोसा, ओके। सो दिस लेयर इज सब म्यूकोसा, ओके। और सब म्यूकोसा के जस्ट ऊपर एक मस्कुलर टिश्यू होता है, दैट्स कॉल्ड म्यूकोसा। पहले मैं इसका नाम लिख देता हूँ। सो दिस वन इज कॉल्ड एज सब म्यूकोसा, okay। And after that, on the top of sub mucosa I have a different layer, and this layer I call it as mucosa, okay। ये mucosa है, करेक्ट। तो इस तरीके से आपके टोटल 4 लेयर्स कंप्लीट हो गए। और हमने स्टडी किया था, एक्चुअली मैंने आपको उसको बताया नहीं था वो टाइम पे, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ओके। विद द हेल्प ऑफ ब्लैक कलर आई एम शोइंग यू, हियर वी हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ओके। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। Gastric glands are producing gastric juices. Okay, so this gastric juices, student, how they are produced. So I'll draw a diagram for the gastric glands. It is somewhat like this. Okay, I'm drawing it double layered. Okay, so it is somewhat like this. Okay,
This is a gland called as, which gland it is? This gland is called as gastric gland. Okay, which gland it is? This gland is called as gastric gland. Okay, gastric gland में gastric juices are produced. In gastric gland gastric juices are produced. और ये जो gland है इसके अंदर different sections होंगे, different types of cells. I can write like this. Different types of cells are there. Okay, तो इसको सिंपल अच्छा दिखने के लिए मैं इसको वाइट कलर से ही ड्रॉ करूंगा, लाइक इन रेक्टेंगुलर फॉर्म लाइक दिस. ओके, और हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस तो होता ही है. सो आई विल बी ड्राइंग न्यूक्लियस ऑल्सो देयर लाइक दिस. ठीक है, अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं दैट वी आर नॉट स्टडिंग. बट यहाँ से ये जो ओपनिंग है, जैसे मटके के ऊपर जो उसका ओपनिंग होता है जहां से पानी बाहर निकाला जाता है, ओके, दैट इज कॉल्ड नेक पार्ट. तो वैसे यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस जो है बाहर आने वाला है, आई विल बी कॉल्डिंग इट एज गैस्ट्रिक पिथ. ओके, एंड दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक ग्लैंड. ठीक है, मैंने सिर्फ एक ही ड्रॉ किया है, एक के बाद एक लाइन से ये सब अरेंज रहेगा लाइक दिस. ओके, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू ड्रॉ ऑल द थिंग्स. एक चीज से अपने को अच्छे से समझ में आ जाता है. ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा. Can we move further then? If it is understood well, then can we move further? Only 10 minutes are remaining, and within 10 minutes, we will be studying about liver, and then this topic will be completed. Moving on to the histological part of histology of liver. Your liver is a important organ which is covered by a thin membrane. Liver के ऊपर एक membrane होता है, okay, and that membrane is called as Glisson's membrane. डायग्राम आपको एकदम फास्ट फास्ट ड्रॉ करना पड़ेगा. प्रैक्टिस करिए डायग्राम का, जितने ज़्यादा आप ड्रॉ कर सकते हो दैट विल बी बेटर फॉर यू. ओके, तो मैंने बताया कि लीवर के ऊपर एक कवरिंग होता है, एक कवरिंग है. ओके, एंड दिस कवरिंग स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड एज ग्लिसन्स कैप्सूल. ग्लिसन्स एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने डिस्कवर किया तो उसका नाम आगे बढ़ना चाहिए, उसके हिसाब से उसने अपना नाम उधर चिटका दिया. ओके,
लीवर जो है इंटरनली कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, और लीवर बॉडी का बड़ा ऑर्गन है, इसके कुछ छोटे मोटे फंक्शंस, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो चीज पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ. आई एम इंटरेस्टेड इन हिस्टोलॉजी ऑफ, आई एम राइटिंग द हेडिंग हिस्टोलॉजी of liver. So I will be talking about the internal parts of the liver. तो first of all, liver जो है, liver के जो cells होते हैं, ये कुछ hexagonal shape होते हैं. Somewhat hexagonal shape, not perfectly hexagonal shape. But since I have a tool to draw in hexagon, so I'm using that tool to make my work easy. Okay. तो ये उसका मैंने hexagonal structure draw कर दिया है. और इसके स्ट्रक्चर पे यू कैन फाइंड द लाइक, इसके बाद में अभी कैसा बताऊं मैं आपको. चलिए थोड़ा सा मैं इसको पहले शॉर्ट कर देता हूँ इस तरफ, लिटिल शॉर्ट. अब हेक्सागोन स्ट्रक्चर जो सेल्स है वो एक के बाजू में एक, अच्छा ये मैंने एक ड्रॉ कर दिया, ये सेकेंड सेल उसके बाजू में, करेक्ट. हनी बी का शेप आपने देखा रहेगा ना, लाइक वैसे ही हेक्सागोनल शेप में वो अरेंज्ड है. ओके. तो ये इधर, फिर एक यहाँ पे ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है. फिर एक इधर ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दिस. तो ये कुछ सेल्स है, ठीक है. अब इन सारी चीजों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन वन. तो जब कभी आप एग्जाम में बुक्स में डायग्राम देखोगे तो आपको बुक्स के अंदर डायग्राम ऐसा वाला मिलेगा और ये वाला पार्ट नहीं रहेगा. तो एक्चुअली आपको ये चीज देखने के लिए बुक्स के अंदर मिल जाएगी. अंडरस्टूड. हाँ. ओके. तो मैं खाली इतने से ही पार्ट को फिर फोकस करता हूँ. ओके. तो बाकी के जो आपको एक्सटेंशन दिख रहे हैं वो बाजू वाले का दीवार है. ओके. आपके नेबर्स में कैसे वॉल्स होती है ना, एक दूसरे के वॉल्स आपके वॉल से कनेक्टेड है, तो वैसे ये बाजू बाजू वालों के वॉल्स कनेक्टेड है. तो ये सिंगल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, करेक्ट. अब इसके अंदर, इसके सेल्स के अंदर, इस सेल्स को हम बोलते हैं हेपेटिक सेल्स. और हेपेटिक सेल्स के अंदर आपको, अब थोड़ा सा उसको जूम कर देता हूं मैं ताकि डायग्राम अंदर वाला पार्ट अच्छे से ड्रॉ कर सकूं. ओके. तो इसके अंदर यहाँ पे आपको चार डिफरेंट टाइप्स के ओपनिंग्स मिलेंगे. एक, दो, वन, टू, थ्री एंड फोर. ओके. फोर डिफरेंट ओपनिंग्स है. तो ये वाला पार्ट मैं बाहर ड्रॉ कर देता हूँ. वन, टू, थ्री, फोर, फोर डिफरेंट ओपनिंग्स है. फर्स्ट ओपनिंग जो है सेंटर में, दिस इज कॉल्ड एज हेपेटिक, हेपेटिक duct. Okay, this is called as hepatic duct. Then hepatic duct का मतलब यहाँ से, अच्छा इसको मैं बोलूंगा बाइल डक्ट बोलूंगा तो आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो. बाइल डक्ट या हेपेटिक डक्ट, ठीक है. मतलब बाइल का पूरा, जो भी कुछ बाइल का प्रोडक्शन होता है वो बीच वाले लाइन में यहाँ पे आके इसके लाइन में से निकलता है, ठीक है. फिर एक जो है, दिस इज कॉल्ड एज हेपेटिक वीन. वीन का मतलब आपको पता है, जिसमें से ब्लड आपके हार्ट की तरफ जाता है, वो वीन है. तो नेक्स्ट वाला क्या रहेगा, हेपेटिक आर्टरी रहेगा. मतलब यहाँ पे हार्ट से ब्लड सप्लाई हो रहा है, क्योंकि हर ऑर्गन को ब्लड का सप्लाई चाहिए, करेक्ट. तो एवरी ऑर्गन इज सप्लाइड विथ ब्लड. तो ब्लड आने के लिए जो सप्लाइंग रोड होता है दैट इज कॉल्ड आर्टरी,
और जाने के लिए जो रोड होता है दैट इज कॉल्ड एज वेन। अब बच गया आपका एक वेसल, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज लिम्फ वेसल। लिम्फ एक ब्लड की तरह ऑर्गन होता है, जैसे ब्लड फ्लो होता है वैसे लिम्फ भी आपके बॉडी में फ्लो होता है। तो ये लिम्फ के लिए वेसल्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ठीक है। इसके अलावा सेंटर में आपको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, ये तो हर जगह पे ऐसे मूव करेगा। तो मुझे हर एक जगह को एक्सप्लेन नहीं करना है, खाली छोटा सा पार्ट मुझे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सेंटर में ब्लड का सप्लाई यहाँ तक होता है, ओके। सेंटर में ब्लड का सप्लाई यहाँ तक होता है, करेक्ट। और इसमें ये जो ब्लड है ये मूव करेगा। ये स्ट्रक्चर है आपके लीवर के अंदर का, ठीक है। ये सेल्स मैंने ड्रॉ कर दिए, सेल्स ऐसा हर जगह पे रहेगा, करेक्ट। तो मुझे सब एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, मैंने आपको बताया छोटा सा पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। अब ये जो बीच में ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज सेंट्रल वेन, ठीक है। ये जो यहाँ से सप्लाई हुआ ना, तो सप्लाई होके यहाँ से, यहीं से वो वहां पे सप्लाई होता है, ठीक है। और ये जो कंप्लीट एक लाइन दिख रही है ना आपको, दिस लाइन, दिस कंप्लीट लाइन इज द हेपेटिक कॉर्ड, ओके। दिस इज कॉल्ड एज हेपेटिक कॉर्ड। टर्म्स याद रखिए, लेबलिंग के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, ओके। और इसके बीच में ये जो स्पेस दिख रही है ना, इस स्पेस का नाम है बाइल, बाइल कैनालिकुली, ओके। इसका नाम है बाइल कैनालिकुली। देखिए जो बाइल कैनालिकुली है, इसके अंदर बाइल का प्रोडक्शन होता है, ओके। इसके अंदर बाइल का प्रोडक्शन होता है। फिर प्रोडक्शन होके कहाँ पे सप्लाई होएगा, देखो यहाँ पे दिया है ना, बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट से कहाँ पे जाएगा, आपके गॉल ब्लैडर के अंदर जाएगा, ठीक है। और ये जो बीच के स्पेस दिखते हैं ना आपको, ओके, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज साइनोसॉइड्स, साइनोसॉइड्स, ओके, जिसके अंदर ब्लड स्टोर होता है, ठीक है। तो हमने आज कंप्लीट किया है हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर और हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक। तो आपका हिस्टोलॉजिकल पार्ट खत्म हो गया है। नेक्स्ट पार्ट रिकॉर्ड